Hello children, today we are going to learn about symmetry. You have already read about symmetry in the last class. In this figure, the dotted line is the axis of symmetry because the figure overlap each other on folding through this line. यदि हम इस एक्सिस लाइन से क्या करें, फिगर को फोल्ड करें तो वो एक ओवरलैप होती हैं, ईच अदर एक दूसरे पर क्या होती है, ओवरलैप होती हैं. इफ़ अ मिरर ऑफ द फिगर शोन इज प्लेस्ड ऑन दिस लाइन, यदि इस लाइन से हम मिरर में भी देखें, देन द इमेज इन द मिरर विल बी सेम एज द हिडन पार्ट ऑफ द फिगर. तो जो आधा हिस्सा को देखना है, आधा को नहीं देखना है, तो आधे को जब हम देखते हैं मिरर में तो वो मिरर में सेम जो हिडन पार्ट होती है वो हमें दिखाई देती है. सो द फिगर रिलेटिव टू दिस सिमेट्रिकल एक्सिस इज सिमेट्रिकल. ओके, नाउ look at the other dotted line of the figure. Look at the other dotted line of the figure. Do both the part of the figure overlap each other completely on folding through the line? जब हम इस लाइन से यदि फोल्ड करें फिगर को तो क्या completely एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे जैसे पहले वाले कर रहे थे. You see that they do not overlap each other completers, है ना. Along with that, if a mirror is placed on this line, then the image in the mirror is not similar to the hidden part of the figure. और यदि हम इसी लाइन से मिरर में भी इमेज देखें तो क्या हिडन पार्ट को सेम दिखाएगा? नहीं दिखाएगा. ओके, सिमिलर नहीं दिखाएगा. So this is not the line of the symmetry. So this is not the line of the symmetry and the figure is not symmetrical. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है सिमेट्री नहीं है and the figure is not symmetrical और फिगर भी क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है through this axis line, this axis line से. Okay, now you draw different line on this figure and see whether this figure is symmetrical about any of these liner. Now children, look at this question. Out of the figures given below, which ones are symmetrical about the given line? About the given line, tick on the symmetrical figures. Okay, this is symmetrical figure, this is also symmetrical figure, this is not symmetrical figure, this is symmetrical figure, this is not symmetrical figure, this is symmetrical figure. Okay, this is also symmetrical figure, this is symmetrical figure, this is not symmetrical figure, this is symmetrical figure, this is also symmetrical figure. Okay, now this is not symmetrical figure. मीन्स जब हम इस लाइन से दी हुई लाइन से फोल्ड करें फिगर को तो क्या वो ओवरलैप होंगे? नहीं होंगे. ओके, ये भी क्या होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. दिस इज नॉट सिमेट्रिकल फिगर. दिस इज सिमेट्रिकल फिगर, दिस इज सिमेट्रिकल फिगर, दिस इज सिमेट्रिकल फिगर. Draw all possible symmetrical axes for the following figures. तो symmetrical axis ये हो जाएगा. ओके, इस तरीके से जब इसमें हम फोल्ड करेंगे, है ना, बीच से यहाँ से ये होगा और आपका
ये भी क्या होगा, सिमेट्रिकल एक्सिस होगा। ओके, ये this line and this line। ओके चिल्ड्रन, इस लाइन से आप फोल्ड करेंगे तो भी क्या होगा, सिमेट्रिकल फिगर होगा, और इस लाइन से आप फोल्ड करेंगे फिगर को तो भी क्या होगा, सिमेट्रिकल फिगर होगा। इसमें सिर्फ एक ही होगा। ओके, इसमें से भी ये होगा। ओके, एंड एक। ओके चिल्ड्रन, now complete the table given below। name of figure, इस फिगर का नेम आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इन द फिगर। हम इस फिगर को देखकर ही यहाँ क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। Total number of symmetrical axes in the figure 3, square 4, rectangle 2, isosceles triangle 1, kite 1, roller 1। okay, kite, isosceles triangle 1, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इन द फिगर। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ कितने सिमेट्रिकल एक्सिस आपने बनाए हैं, तो आपको यहाँ काउंट करके लिखना है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इन द फिगर 3 सिमेट्रिकल एक्सिस। स्क्वायर हैज़ 4 सिमेट्रिकल एक्सिस। Rectangle has 2 symmetrical axes. Isosceles triangle has 1 symmetrical axis. Kite has 1 symmetrical axis, and roller has 1 symmetrical axis. Okay. Now children, look at this figure. If we rotate the given figure, यदि हम दिए गए फिगर को रोटेट करते हैं from its place in such a way that the topmost red petal comes down, red petal completely वो down में आ जाए, and the lowermost green petal goes up, और ये red के place में चले जाए। ओके, then it is called half rotation of the figure। तो ये क्या कहलाएगा, फिगर का हाफ रोटेशन। मीन्स इस तरीके से आपको यहाँ ले आना है, ऐसे ग्रीन को रेड के प्लेस में और रेड को ग्रीन के प्लेस में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाएगा, हाफ रोटेशन के बाद ये कैसा दिखेगा, देखिए इस तरीके से। आफ्टर हाफ रोटेशन द फिगर विल लुक लाइक दिस। ओके, डज दिस फिगर look the same before and after half rotation? क्या हाफ रोटेशन के बाद सेम दिख रहा है? No, you have seen that this figure does not look the same in both the situations. So after half rotation this figure is not a rotational symmetric figure. Okay, now look at this figure। अब इस फिगर को देखिए, बिफोर हाफ रोटेशन, ये हाफ रोटेशन के पहले का है, और ये क्या है, आफ्टर हाफ रोटेशन। यू सी दैट द फिगर 2 look at the same, okay, after the before half rotation from its place, so after half rotation this figure is rotational symmetric। वो हाफ रोटेशन के बाद भी यदि वो सेम दिखे तो वो क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्रिक कहलाएगा, फिगर होगा। ओके,
The property of figure to look like the same after rotation from its place is called rotational symmetry. Okay, the property of figures to look like the same after rotation from its place called rotational symmetry. The property of figures to look like the same after rotation from its place is called rotational symmetry. Now ways of rotation के कई ways होते हैं, तरीके होते हैं. हाफ रोटेशन एज इट्स प्लेस, हाफ रोटेशन जैसे इस प्लेस में आप देख सकते हैं. द फर्स्ट मेथड इस तरीके से हाफ रोटेट कर दिए तो ये ब्लू नीचे आ गया, है ना. द अदर मेथड, एक तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, और एक क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, दो तरीके से हम कर सकते हैं, क्लॉकवाइज. ओके, ये आपका क्या हो, है ना, एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओके, अब यहाँ देखिए, इसको ऐसे करके घुमाया जा रहा है, इसको ऐसे इधर से, एंड इसको इस तरीके से. एरो जिधर किया गया है, एरो आपको एरो को देखना है कि उसको कैसे करके रोटेट किया गया है. इसको इस तरीके से रोटेट किया गया है. ओके, इसको ऐसे, है ना, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है. मीन्स घड़ी जिस तरीके से चलती है वो क्या है, क्लॉकवाइज. यदि घड़ी को उल्टा करके चलाएं तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज. घड़ी की जो सुइयां हैं. ओके, अब ये देखो, ये घड़ी को यदि हम उल्टा चलाएं तो ऐसे चलेगी, मतलब ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, अब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओके चिल्ड्रन, नाउ क्वार्टर रोटेशन एज इट्स प्लेस. अब क्वार्टर रोटेशन मीन्स जैसे घड़ी की 1/4 जिसको कहते हैं, 1/4 हमको टर्न करना है. ठीक है. द फर्स्ट मेथड, जैसे ये घड़ी है, सपोज़ यहाँ आपका 12 होता है और यहाँ 3 होता है ना, तो इतना ही आपको क्या करना है, रोटेट करना है. ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्वार्टर हमने रोटेट किया, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्वार्टर रोटेट करना. ओके, क्वार्टर रोटेशन. ओके, ना अब यहाँ देखिए, इसको जब हमने रोटेट किया तो ये ऐसा फिगर बन गया, है ना. इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ऐसा बन गया. ओके, ऐसा बन गया, है ना. ना अब इसको क्वार्टर रोटेशन किए तो कैसा बना, ये ऐसा. और इसको जब हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ऐसा बना. तो हमको देखना है, यू हैव सीन दैट रोटेशन कैन बी इन 2 ways, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो आपने देखा कि रोटेशन 2 तरीके से हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओके, नाउ चिल्ड्रन, मैंने जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल समझाया है, ठीक उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है. सो you will solve this exercise yourself. Okay, thank you.